welcome, dear students. Welcome again, all of you in this lecture room. As you know, we are discussing this topic, genetic disorders, from last 3 days. So, as you know, as I already told you that the genetic disorders, they are of two types. One is called as Mendelian. One is called as Mendelian disorders. Mendelian disorders. Second is called as chromosomal disorders. Chromosomal disorders. Chromosomal disorders. So we have already discussed this Mendelian disorders, and I told you the Mendelian disorders, there are various types. One is called as hemophilia. Second is called as color blindness. Third is called as sickle cell anemia. Then next one is called as cystic fibrosis. Next one is called as phenylketonuria. Next one that is called as thalassemia. So, as we have already discussed these disorders, that's hemophilia, color blindness, sickle cell anemia, cystic fibrosis, phenylketonuria, and thalassemia, which we have already discussed. So, today's topic which we are going to discuss, that is called as, so you can go through previous two lectures in which I have discussed this detail. So, हमें अच्छी तरह से वो ये understand कर पाओगे आप उन दो lectures में. So, today's topic is that is called as chromosomal disorders. So, let us discuss this chromosomal disorders. तो मेंडेलियन डिसऑर्डर मैंने कहा कि वहाँ पे डिफेक्ट या जीन लेवल पर हो सकता है या डीएनए लेवल पर हो सकता है, लेकिन ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो है यहाँ पे डिफेक्ट जो है दैट इज इन नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स. कभी कभी ऐसा होता है क्रोमोसोम नंबर में डिफेक्ट होता है, क्रोमोसोम नंबर में increase होता और decrease होता है. As we know that there are 46 chromosomes in human beings. This is the normal one, but sometimes in certain cases, as it has been reported that one chromosome number gets increased, result becomes 47. But in some cases, decreased by one chromosome, the result becomes 45. It will be increased by one chromosome, but there will be decreased by one chromosome. जब ये होता है तो उनको हम कहेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स. तो होता क्या है जब ये प्रॉब्लम होती है, when there is increase of chromosome number by one to normal chromosome number, or there will be decrease of chromosome number by one to normal chromosome number. यहाँ पे क्या हो सकता है, कभी कभी इंक्रीज क्रोमोसोम नंबर में हो सकता है बाय वन टू नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर, इट विल बी 47. और कभी क्या हो सकता है डिक्रीज ऑफ क्रोमोसोम नंबर बाय वन टू नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर, सो द रिजल्ट विल बी 45. तो इन दोनों को हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज एन्यूप्लॉइडी. दिस प्रोसेस और फिनोमेना is called as aneuploidy. So this is called as
aneuploidy. And aneuploidy is that process or phenomena. In this case, there occurs change in chromosome number. It may be increase of chromosome number 1 to normal chromosome number, or it may be decrease of chromosome number 1 to the normal chromosome number. So this is called as aneuploidy. तो ये डिफेक्ट कहाँ पे होता है और कब ये डिफेक्ट होता है? तो आप जानते हैं सेल डिवीजन होती है ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, during gamete formation cell division takes place. तो जब गैमेट फॉर्मेशन होती है उस वक्त सेल डिवीजन होता है, तो दैट सेल डिवीजन इज मियासिस. सो उस वक्त क्या होगा, मान लो यहाँ पे ले लेंगे नॉर्मल सेल. This is a normal human being cell that is carrying 46 chromosome number. So they are in pairs. In meiosis or in metaphase, they are in pairs. So this may be chromosome number in pairs. So as you know that chromosomes, they are of two types. The chromosomes are of two types. One is called as autosome. So one type of chromosome is called as autosomes. Other is called as sex chromosomes. These are the chromosomes, so we can classify them in two categories. One is called as autosomes. So number of autosomes है that is 44. तो sex chromosome का जब there are two types, two in number. तो यहाँ पे मेल में XY chromosome होता है sex chromosome. In female it is XY. तो ये are pairs, ये pairs में होते हैं. मान लो this is female carrying this 44 plus XX chromosome in female. This is female carrying 44 plus XX chromosomes. Suppose it is here male. So there will be also chromosomes in pairs. There are 44 autosomes and 2 XX chromosomes in the form of XY. So here यहाँ पे हम लिखेंगे 44 autosomes plus XY. तो नॉर्मल डिसजंक्शन जो होता है, आपके टर्म में याद रखिए, नॉर्मल डिसजंक्शन और दिस में भी कॉल्ड एज सेपरेशन. और इट में भी आल्सो कॉल्ड एज सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम्स. क्योंकि जब मियासिस होता है तो मियासिस में बहुत से फेसेस होते हैं. एक को हम कहते हैं प्रोफेज, this is called as PB prophase, this is called as MP metaphase, anaphase, and last one TP telophase. So इस मेटाफेज में क्रोमोसोम्स दे आर इन पेयर्स. उसके बाद क्या होता है नॉर्मल केस में, यहाँ पे सेंट्रियोल्स आते हैं तो फाइबर्स बनाते हैं, स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं यहाँ पे. तो ये स्पिंडल फाइबर्स जो है ये इन क्रोमोसोम्स को अपने पोल्स की तरफ लेते हैं. तो नॉर्मली क्या होगा, यहाँ पे ये एक यहाँ पर गैमेट बनेगा, यहाँ पे एक गैमेट बनेगा. सो यहाँ पे क्रोमोसोम्स कितने होंगे? सो सेपरेशन, मान लो ये एक पेयर है, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, देन थर्ड पेयर. तो 23 क्रोमोसोम्स विल बी इन दिस. मान लो यहाँ पे 22 प्लस एक एक्स आएगा इसमें नॉर्मल केस में. तो यहाँ पे क्या होगा, 20 क्रोमोसोम्स यहाँ पे होंगे 22 प्लस एक्स. दिस इन केस ऑफ फीमेल. तो मेल में भी ऐसा ही होगा. नॉर्मल केस यहाँ पे एक गैमेट बनेगा और यहाँ पे एक गैमेट बनेगा. तो इसमें भी क्रोमोसोम्स होंगे 22 प्लस एक्स. एक में एक्स आएगा, तो यहाँ पे एक्स है, एक में एक्स आएगा, तो दूसरे में वाई आएगा. इसे कैरी 22 ऑटोसोम्स प्लस 1 वाई. सो दिस आर नॉर्मल गैमेट्स. जब उनमें फ्यूजन होगा तो ये और ये फॉर्म 44 प्लस एक्स. दिस वन अगर ये इसके साथ फ्यूज होगा तो इट विल फॉर्म 44 प्लस XY. या ये इसके साथ कंबाइन या फ्यूजन होगा 44 प्लस XX. या ये इसके साथ फ्यूज होगी ये सेल तो इट विल फॉर्म 44 प्लस XY. So 50% will be normal male, 50% will be normal female. So this is normal meiosis या normal disjunction of chromosome या normal separation of chromosome during cell division or I can say meiosis. तो कभी कभी डिफेक्ट यहाँ पे क्या होता है, मान लो यहाँ पे डिफेक्ट, ये मैंने यहाँ बनाई सेल, दिस इज फीमेल,
इट कैरीज 44 ऑटोसोम्स एंड एक्स। तो उसमें कभी कभी क्या होता है, जब क्रोमोसोम्स सेपरेट हो, मान लो ऑटोसोम्स में यहाँ प्रॉब्लम होगी, मान लो ये जब ये सेपरेट नॉर्मल में होगी तो एक में 22 ऑटोसोम्स आएंगे, एक में 22 ऑटोसोम्स आएंगे। कभी ऐसा होता है जब ये क्रोमोसोम्स यहाँ सेपरेट शुरू होने लगेंगे तो यहाँ पे हाफ क्रोमोसोम आएगा, यहाँ हाफ क्रोमोसोम नॉर्मल केस में। कभी क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये पेयर अच्छी तरह सेग्रीगेट होगा, ये भी अच्छी तरह सेग्रीगेट होगा, ये भी अच्छी तरह सेग्रीगेट होगा, मगर यहाँ पे प्रॉब्लम होगी थर्ड पेयर, सपोज थर्ड पेयर या फोर्थ पेयर में। दिस पेयर जो है, मान लो ये पेयर जो है, ये वाला, इसको मैं यहाँ पे ब्लैक कलर से आइडेंटिफाई करूंगा, ये पेयर सेपरेट नहीं होगा। तो नतीजन क्या होगा, यहाँ पे दोनों के दोनों क्रोमोसोम एक ही साइड पे आएंगे। मान लो ये थर्ड पेयर ये सेपरेट नहीं हुआ, तो यहाँ पे दोनों के दोनों एक ही साइड में आएंगे। तो इसमें क्या होगा, इसमें 0 आएगा, तो यहाँ पे मान लो इसमें x और इसमें भी x, ये दो बनेंगे मिक्स। तो इसमें अगर देखेंगे, इट विल कैरी 23 ऑटोसोम्स। यहाँ पे तो ये पेयर एक ही साइड आया, 23 ऑटोसोम्स प्लस ये x आएगा यहाँ। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे तो 21 ऑटोसोम्स हैं, क्योंकि एक तो इसमें चला गया तो आने थे 22, लेकिन इसमें 23 आ गए, इसमें आने थे 22, बट 21 एक इसमें चला गया, तो 22 प्लस हम यहाँ पे लिखेंगे x, 22 प्लस x। तो जब मान लो यहाँ पे, तो मान लो मेल, दिस इज मेल एंड पेयर्स कैरीज XY, तो इसमें नॉर्मल डिसजंक्शन या इसमें नॉर्मल मियासिस होगी। तो एक में 22 प्लस x होगा क्रोमोसोम का नंबर, एक में दूसरा गैमेट बनेगा, इसमें 22 प्लस 5 आएगा, 22 प्लस 5। सो दिस आर नॉर्मल गैमेट्स। अब अगर फर्टिलाइजेशन, बारी फर्टिलाइजेशन की है, तो यहाँ पे अगर फर्टिलाइजेशन दिस एग एंड दिस स्पर्म टेक्स प्लेस, तो इसमें 23 ऑटोसोम्स हैं, तो इसमें 22 ऑटोसोम्स हैं, तो इट विल फॉर्म 45 ऑटोसोम्स। तो यहाँ पे x, मान तो x फॉर एग्जाम्पल दिस विल हैपन। या ये इसके साथ भी आ सकती है, अगर ये फर्टिलाइजेशन इसके साथ होगा यहाँ पे, तो इट विल फॉर्म 45 प्लस या 45, तो यहाँ पे 2x आएंगे। सपोज यहाँ पे पहले तो यहाँ ऑटोसोम्स की प्रॉब्लम होगी, तो इसमें जो दैट विल हैव 47 क्रोमोसोम नंबर, तो यह ऑटोसोम्स की प्रॉब्लम है। अगर तो ये अगर ऑटोसोम्स अच्छी तरह सेग्रीगेट नहीं होंगे, तो क्रोमोसोम नंबर विल इन वन सेक्स इट विल बी 47। तो ये प्रॉब्लम जब होती है, जब क्रोमोसोम नंबर में डिफेक्ट ऑटोसोम्स में होता है, ऑटोसोम अच्छी तरह सेग्रीगेट नहीं होते हैं। यहाँ पे एक में 23 ऑटोसोम्स आ गए, एक में 21, तो ये प्रॉब्लम है। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड एज डाउन सिंड्रोम। This is called as Down syndrome. ये तो Down syndrome, why it is called as Down syndrome? It was discovered by Langdon ने डिस्कवर किया, that is why it is called as Down syndrome. तो जब इसमें सिम्टम्स देखे गए, डिफेक्ट्स देखे गए, तो इसमें क्या प्रॉब्लम थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसमें क्रोमोसोम नंबर इज 47, क्योंकि इसमें 40 ऑटोसोम्स दिया 45 प्लस x क्रोमोसोम, चाहे XX हो या XY हो। अगर ये फीमेल होगा तो फीमेल में 44 ऑटोसोम्स आएंगे और 2x आएंगे। अगर ये मेल होगा तो वहाँ पे 45 ऑटोसोम्स और XY होगा। तो इनमें क्या प्रॉब्लम होगी, तो यहाँ पे जब देखा गया तो इनमें फर्स्ट दैट दे हैव partially open mouth, नंबर 1। नंबर 2, उनमें mental retardation यानी mentally they are not sound। सो इनमें एक तो क्या हो गया, partially open mouth, सेकंड mental retardation, थर्ड palm जो होगी उनकी palm, that is broad fingers जो होंगे they will be stubby, यानी fingers are stubby। और एक प्रॉब्लम होगी
that is they are physically, they are, that is physical, psychomotor and mental retardation will be there. So this type of syndrome is called as Down syndrome. So you may learn it is the problem of the defect of, it is defect related with, this defect is related with autosomes, because here autosomes, one pair, that is 21st pair of autosome does not segregate or separate during cell division. यानी जो 21st पेयर क्रोमोसोम है, अभी ऑटोसोम है या क्रोमोसोम, ये दो अच्छी तरह से सेग्रीगेट या सेपरेट नहीं होता है, तो ये दोनों के दोनों एक ही साथ आते हैं। जब यहाँ पर जब फर्टिलाइजेशन होगी तो यहाँ पे इस पेयर में क्या होगा, तो इस एक के दो आएंगे, इसका एक आएगा, ये तो तीन बनेंगे यहाँ पे ये तीन आएंगे, जिसका ट्राइसोमी कंडीशन। दिस प्रॉब्लम इज आल्सो कॉल्ड एज ट्राइसोमी। ये कभी ऑब्जेक्टिव आ सकता है, दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज ट्राइसोमी। तो क्या मतलब, ये एक गैमेट में दो क्रोमोसोम्स हैं, एक में वन आएगा तो यहाँ दोनों मिलेंगे, तो दिस विल बी ट्राइसोमी कंडीशन। इट इज रिटन एज 2n+1। ये भी कभी ऑब्जेक्टिव आ सकता है। जो ट्राइसोमी है, ट्राइसोमी, इट इज रिटन एज 2n+1। 2n+ मीन्स नॉर्मल डिप्लॉयड कंडीशन हैविंग 46 क्रोमोसोम नंबर, तो इसमें एक एंड हो रहा है यहाँ पे, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड 2n इज डिप्लॉयड कंडीशन। सो एक क्रोमोसोम एंड 1, दैट इज व्हाई इट्स बीन कॉल्ड एज 2n+1 या 46+1। तो ये इसको कहते हैं डाउन सिंड्रोम। तो ये एक तरीका का, ये एक सिंड्रोम है, डिफेक्ट ऑफ क्रोमोसोम। तो सेकंड केस में क्या होगा, यहाँ पे हर एग्जांपल सेक्स क्रोमोसोम्स की बात हम करेंगे, उनमें प्रॉब्लम हो सकती है रिगार्डिंग सेक्स क्रोमोसोम्स। कभी कभी सेक्स क्रोमोसोम अच्छी तरह सेग्रीगेट नहीं होते हैं, सेपरेट नहीं होते सेक्स क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पे मान लो दिस फीमेल, इट कैरीज 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, 22 आर ऑटोसोम्स एंड 1 इज सेक्स क्रोमोसोम। तो यहाँ पे मेल में बना दिस मेल सेल, तो उसमें भी 22 पेयर्स विल बी ऑटोसोम्स, 1 विल बी XY here XY। तो इसमें 46 क्रोमोसोम, या मैं यहाँ लिखूँ 44 + XX, यहाँ पे क्या है 44 + XY। तो यहाँ पे डिफेक्ट होता है सेक्स क्रोमोसोम फीमेल्स। दिस इज इन केस ऑफ फीमेल्स, तो फीमेल्स में जब मियास होती है ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, तो प्रॉब्लम होती है यहाँ पे। तो ये ऑटोसोम्स अच्छी तरह सेपरेट होते हैं, मान लो ये गैमेट एक बन गया, तो ऑटोसोम्स अच्छी तरह सेपरेट होंगे, लेकिन ऑटोसोम्स will get segregated properly, but defect is with sex chromosomes। मान लो यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम XX है, उसको तो सेपरेट होना था, मान लो इस तरह मैं यहाँ पे बनाऊंगा गैमेट, तो ऑटोसोम्स अच्छी तरह सेपरेट हुए, ये अब सेपरेट होना था XX, तो एक X यहाँ आता, एक X यहाँ आता है, तो यहाँ भी 23 बनता है, यहाँ भी 23। कभी कभी प्रॉब्लम होती है दोनों के दोनों से, X क्रोमोसोम जो है ये एक ही साइड पे आते हैं, तो इसमें क्या आएगा 22 ऑटोसोम्स प्लस XX, दोनों के दोनों X एक ही गैमेट में चलेंगे, तो यहाँ क्या होगा 0। तो यहाँ तो ये सेपरेट नहीं हुआ, डिसजंक्शन नहीं हुई यहाँ पे, या सेग्रीगेशन नहीं हुई, तो यहाँ पे क्या आएगा 22 + 0। सो दिस gametes in one gamete there will be 22 + XX chromosome, in other there will be 22 + 0। तो ये तो मेल है, मेल से इसमें नॉर्मल डिवीजन होगा, ऑटोसोम्स एज वेल एज बोथ सेक्स क्रोमोसोम्स, एंड दिस X, एक में तो X आएगा। तो दूसरा जो है
मान लो दूसरा गैमेट यहाँ पे है, इसमें तो ऑटोसोम अच्छी तरह सेपरेट हुए, उनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। बाई क्रोमोसोम यहाँ पे आएगा, दिस आर नॉर्मल गैमेट्स, इनके साथ ह्यूमन फीमेल मेल्स। तो आप इसमें लिखेंगे 22 + x, तो इसमें लिखेंगे 22 + y, नॉर्मल गैमेट्स आ गए। अब जब फर्टिलाइजेशन की बारी आएगी, यहाँ पे मान लो ये फीमेल गैमेट कैरी 22 + XX, मान लो ये इसके साथ कंबाइन हो गया, तो यहाँ पे क्रोमोसोम 22 + 22 44 ऑटोसोम्स विल बी नॉर्मल, बट 1x 1x and y, so x x y, so these are 3 chromosomes in this, so this will be called as trisomy. तो it will be also written as 2n + 1, मगर यहाँ पे ऑटोसोम की प्रॉब्लम थी, मगर यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम प्रॉब्लम थी। So this type of syndrome, it is called as, this type of syndrome, it is called as Klinefelter syndrome. Klinefelter syndrome. It is called as Klinefelter syndrome. तो यहाँ पे जब देखते हैं सिम्टम्स क्या होते हैं इसमें, नंबर 1, such offspring when they take birth, by birth they look like male, having masculine characters. Masculine characters are they are male by birth, but they show female characters also. Female characters. Female characters, for example, breasts develop उनमें होंगे, breasts develop उनमें होंगे, तो it will be function, it will be sterile. ये sterile गैमेट फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं, it will be sterile, और mentally it will not be so much developed, तो उसमें वॉइस की भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि फीमेल के कुछ कैरेक्टर्स दिखा सकते हैं। So this is called as Klinefelter syndrome. Here the problem lies with the separation of sex chromosomes. So this is called as Klinefelter syndrome. Another type of syndrome जो है, that is called as Turner syndrome. Another type of syndrome that is called as Turner syndrome. So that is also here. इनमें क्रोमोसोम एक मतलब इन एडिशन था 47 क्रोमोसोम था, तो उस डाउन्स में भी 40 क्रोमोसोम 47 था, एंड बोथ में 47, मगर यहाँ पर डाउन्स में ऑटोसोम था एडिशन में, लेकिन यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम। तो टर्मिनल्स में क्या देखा गया, तो यहाँ पे मैं अब यहाँ डायग्राम मैंने बना के रखी है, ये मैं एक्सप्लेन करूँगा। मान लो ये तो फीमेल है, फीमेल सेल, दिस मेल सेल, तो इसमें क्रोमोसोम्स आर इन पेयर, you have both autosomes as well as sex chromosome. Here also in case of male, autosomes as well as XY. तो इसमें हम लिखेंगे 44 + XX, इसमें क्या लिखते हैं 44 + XX। क्लियर? जब सेग्रीगेशन होगी, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स होगी ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन या मियासिस, तो ऑटोसोम्स अच्छी तरह सेपरेट होते हैं, ऑटोसोम में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो अच्छी तरह सेपरेट होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं। सो यहाँ पे इस गैमेट में 22 ऑटोसोम्स आएंगे और इसमें भी 22 आएंगे, मगर प्रॉब्लम यहाँ पे होती है सेक्स क्रोमोसोम जो फीमेल में होता है, दोनों के दोनों एक ही साइड चले जाते हैं, दोनों के दोनों एक ही साइड चले जाते हैं, तो दूसरे गैमेट में क्या, यहाँ तो ऑटोसोम्स 22 बार, सेक्स क्रोमोसोम भी है 0। सो ये हम लिखेंगे 22 + XX, दिस गैमेट, बट दिस गैमेट कंटिन्यूस 22 + 0। यहाँ पे क्या होगी, मैंने क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम में ये कंडीशन आई 2n + 1, बट 2x 1y, दिस वाज क्लिनेफेल्टर। बस टर्नर्स में क्या होता है, यहाँ तो कोसाइन है, यहाँ तो कोई डिफरेंस नहीं। टर्नर्स में क्या होता है, यहाँ पे जब फर्टिलाइजेशन होती है, दिस एंड दिस, वन गैमेट हियर दैट कैरीज 22 + 0 क्रोमोसोम्स, सो ये जिस नॉर्मल मेल गैमेट के साथ फ्यूज होता है, जिस गैमेट गेट्स नॉर्मली फ्यूज्ड विद नॉर्मल दिस मेल गैमेट कैरीज X क्रोमोसोम। यहाँ तो फ्यूजन कर क्लिनेफेल्टर्स में फ्यूजन किसके साथ होता था, 22 + XX एंड 22 + Y, मगर यहाँ पे फ्यूजन किसके साथ होगा, 22 + 0 22 + X। तो इसमें जब देखेंगे क्रोमोसोम नंबर क्या आएगा, इसमें 22 22, ये तो 44 ऑटोसोम्स आएंगे, प्लस यहाँ तो 0 है, यहाँ X,
सो यहाँ तो कमी होगी, दैट देयर विल बी लेस ऑफ वन क्रोमोसोम, लेस ऑफ वन सेक्स क्रोमोसोम या एक्स क्रोमोसोम, लेस ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम, यहाँ पे एक नंबर कम होगा, बट एक्स क्रोमोसोम द रिजल्ट विल बी हैविंग 44 क्रोमोसोम्स। तो इसको हम कहते हैं, यहाँ पे तो डिप्लॉयड है इंडिविजुअल, तो इसको 2n के से लिखेंगे, बट देयर इज वन एक्स क्रोमोसोम लेस, इसको हम माइनस के तौर पर यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं -1। हाँ 2n+2, वहाँ तो एक क्रोमोसोम इन एडिशन था, इंक्रीज था, यहाँ तो एक क्रोमोसोम कम है, वहाँ तो ज़्यादा था एक क्रोमोसोम, यहाँ तो एक क्रोमोसोम कम है, तो ये डिप्लॉयड कंडीशन है, यानी 46 क्रोमोसोम यहाँ पे है, 46 नॉर्मल में, बट उसको हम -1 करेंगे, दैट विल बी 45। सो दिस इज कॉल्ड एज मोनोसोमी, दिस इज कॉल्ड एज मोनोसोमी बिकॉज यहाँ पे आप देखते हैं 44 ऑटोसोम्स वो 22 पेयर्स बनाएंगे, जब ये आएगा यहाँ पे 0 1 होगा तो एक ही क्रोमोसोम यहाँ पे, इसे कहते हैं मोनोसोमी। यहाँ पे तो 3 क्रोमोसोम थे, इसे कहते हैं ट्राइसोमी, बट यस ओनली one chromosome is called as monosomy. So this type of defect is called as Turner syndrome. So by birth they are females, यानी ये females होंगे, जब ये birth लेंगे this offsprings all will be as female, but these females are sterile, they can't produce any kind of gamete, number 1. Number 2, secondary सेक्सुअल कैरेक्टर्स, तो उसमें ये भी एब्सेंट होंगे, देयर विल बी नो डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन सच एबनॉर्मल फीमेल्स। सो दिस इज कॉल्ड एज टर्नर्स सिंड्रोम। Here also another defect will be there, the ovaries will be rudimentary ovaries, यानी ovaries जो डेवलप होंगे वो फंक्शनल नहीं होंगे, नॉन फंक्शनल होंगे, या कॉल्ड एज rudimentary ovaries. So this type of abnormality is called as Turner syndrome. So these are 3 types of syndromes. They are due to either by increase of one chromosome or by decrease of one chromosome. One was called as Down syndrome, second is called as Richard syndrome, third is called as Turner syndrome. तो इस प्रोसेस को हम कहते थे, क्या कहते हैं, एन्यूप्लॉइड। तो कभी ये ह्यूमन बींग्स में होता है, प्लांट्स में भी कभी ये डिफेक्ट्स होते हैं, तो वहाँ एक क्रोमोसोम या 2 क्रोमोसोम इंक्रीज और डिक्रीज तो नहीं, बल्कि वहाँ पूरा का पूरा सेट इंक्रीज होता है। इन प्लांट्स फुल, यानी एडिशन ऑफ full set of chromosome takes place, and full set of chromosome to normal one takes place। यहाँ पे एक क्रोमोसोम नहीं बल्कि पूरा का पूरा सेल, यानी कि हप्लॉइड, फॉर एग्जांपल अगर देखेंगे यहाँ पे दिस इज सेल having chromosome number 20, for example plant cell having chromosome number 20, जब मियासिस होगा इनमें, तो मियासिस में तो गैमेट्स में हाफ क्रोमोसोम आएगा, यहाँ तो 10-10 के क्रोमोसोम्स होंगे। तो कभी कभी क्या होता है, ये नॉर्मल प्रोसेस, तो जब फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन में ये डिप्लॉयड कंडीशन रेस्टोर होती है, मगर कभी क्या होता है, सपोज दिस here it is plant cell, this is plant cell here. In plant cell there are chromosomes, for example there are 8 chromosomes, 2 4 6 8। so यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मल में this spindle fibers are formed, these spindle fibers they carry these chromosomes towards their respective poles। तभी तो एक में हाफ क्रोमोसोम आता है, एक में हाफ क्रोमोसोम आता है, नॉर्मल प्रोसेस। मगर कभी कभी क्या होता है, ये स्पिंडल फाइबर्स बनते ही नहीं है। मान लो ये 8 क्रोमोसोम्स हैं, ये तो मेल, मान लो ये फीमेल और मेल ऑर्गेनिज्म है, इसमें जब सेग्रीगेशन होगी तो यहाँ तो स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे ही नहीं। जब स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे ही नहीं, तो जब मियासिस होगी तो इसमें
ऑल के ऑल 8 क्रोमोसोम्स इसी में रहेंगे। तो जब ये गैमेट, मान लो दिस इज फीमेल गैमेट, तो यहाँ पे मेल गैमेट नॉर्मल है, दैट कैरीज 4। जब यहाँ पे मान लो दिस इज मेल सेल, जब यहाँ पे सेग्रीगेशन होगी, मियासिस होगी, तो यहाँ पे इसमें 4 आएंगे, इसमें 4 आएंगे। तो दिस आर नॉर्मल गैमेट्स। अगर ये यहाँ पे मान लो 4 क्रोमोसोम्स आएंगे, 4, दिस कैरीज 8, तो यहाँ तो 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम आएंगे, तो ये इसमें के साथ मिलेंगे, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हियर विल बी, एक तो इसमें 8 है, इसमें 4 आएंगे, सो इट विल बी 8 + 4, दैट विल बी 12 क्रोमोसोम्स। तो यहाँ एक फुल सेट और 2 फुल सेट क्रोमोसोम्स ऐड हुए। अगर हम हैप्लॉइड की बात करेंगे तो हैप्लॉइड को हम M से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी हैप्लॉइड is written as M, diploid as 2M, triploid as 3M, is tetraploid as 4M, penta as 5M, then hexaploid or polyploid. So जब more and more sets of chromosomes will get added, so such process is called as polyploid. Such process is called as polyploid. The phenomena is called as polyploidy. Polyploidy वो process होती है, ये तो अक्सर plants में होती है। This process takes place in plants. तो उसमें क्या होता है, इसमें एक सेट क्रोमोसोम नहीं बल्कि पूरा का पूरा सेट के भी, एक सेट के भी 2 सेट क्रोमोसोम उसमें ऐड होंगे, तो इट विल फॉर्म ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड और polyploid. Such process called as polyploidy. So this happens in evolution. So 2 types of abnormalities are there as far as chromosomal disorders. One is called as aneuploidy. One is called as aneuploidy. So aneuploidy में हम या तो ट्राइसोमी है 2n+1 या मोनोसोमी 2n-1। यहाँ पर सिंड्रोम्स हमें 3 तरह के देखे। तो 2n+1 में एक तो हमने डाउन सिंड्रोम देखा, डाउन सिंड्रोम। तो दूसरा देखा हमने उसमें क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। तो ये 2n-1 ये टर्नर सिंड्रोम में हमने देखा, जिसका कंडीशन टर्नर सिंड्रोम। तो इसको हम एनियोप्लाइडी कहते हैं। तो पॉलीप्लाइडी में क्रोमोसोम गेट्स इंक्रीज बाय सेट्स। अगर एक सेट के लिए 8m इंक्रीज होगा, तो अगर उसमें 2 होंगे तो 2n+1 इट विल बिकम 3n। अगर किसी में 3n ऐड होंगे, इट विल बिकम 4n, 5n similarly. So this is called as polyploidy. So this is called as chromosomal disorders or chromosomal abnormalities in human beings as well as in plants. So I think this was all about genetic disorders, both male and as well as these were discussed in detail. So I think this section. Thank you.